Good morning, students. Welcome back in your English grammar class. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, I hope you all have enjoyed your summer vacations. So, now we will again start learning new topics in English grammar. Without wasting time, let's start. So, this is our new topic, Chapter 7 Nouns. So, before summer vacation, we done till this topic, Chapter number 6 Interrogative Sentences, right? So, today we will start with our new topic, Nouns. So noun, you all know the name of any person, place, animal or thing, right? You all are very well aware with noun that what nouns are. So यहाँ पे हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इंट्रोडक्शन गिवन है. पार्ट ऑफ स्पीच इज़ व्हाट. सी, जो सेंटेंस होता है, जो हम सेंटेंस बोलते हैं, वो क्या है? वो एक स्पीच है, राइट? सो उस सेंटेंस के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. उसके अंदर नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, वर्ब भी होती है, राइट? सो ये जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं सेंटेंस की, वो होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. So we say sentences to convey messages. The sentences are made up of words. So the words belong to different classes or groups. वो जो words हैं sentence के अंदर use करे हैं हमने, that are made up of different classes or groups. These groups or classes are called the parts of speech. वो groups और वो classes क्या कहलाती हैं? Parts of speech. So there are 8 parts of speech: noun, verb, adjective, pronoun, adverb, preposition, conjunctions and interjection. सी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनके बारे में हम अपनी फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे डीपली. ओके, आज की क्लास में हम सिर्फ एक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे जो है नाउन. ओके, बाकी की जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनके बारे में हम अपनी फर्दर क्लासेस में जानेंगे. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द नाउन. सो लेट्स स्टार्ट. So everything around us has a name. These names help us to identify person, place, things और animals. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के नेम होते हैं, राइट? या तो वो एक पर्सन होता है, या फिर प्लेस होती है, या फिर कोई थिंग है, राइट? सो ये सब, ये जो नेम्स हैं वो क्या है? वो है नाउन. नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. नाउन क्या होता है? इन्हीं पर्सन, प्लेस और एनिमल, थिंग के जो नेम होते हैं वो नाउन कहलाते हैं. पर्सन लाइक डॉक्टर, टीचर, फादर, मदर, राइट? जितने भी नेम्स होते हैं डिफरेंट पर्सनस के वो नाउन होते हैं. प्लेसेस लाइक स्कूल, पार्क, हॉस्पिटल्स. एनिमल्स लाइक डॉग, एलिफेंट, कैट. थिंग्स लाइक चेयर, बॉल, बुक्स एंड मैनी अदर थिंग्स, राइट? So noun is what? Noun is the name of any person, place, animal or thing. We also called it naming words. नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं. नाउ वी विल टेक सम सेंटेंसेस एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द नाउन इन द गिवन सेंटेंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज पीटर इज रीडिंग अ बुक. So in the given sentence, Peter is what? Peter is the name of a person, right? So it is also a noun, and book is the name of a thing. So name of a thing or person is a noun. Now second is Meera teaches very well. So Meera in the given sentence is what? She is a person. So Meera is also a noun, name of a person. Now next sentence is this is a bag. So इसमें हमें एक थिंग का नेम गिवन है, नेम ऑफ अ थिंग विच इज़ ऑल्सो अ नाउन, बैग, राइट? नाउ नेक्स्ट इज मैंगोज आर इन द बास्केट. सो मैंगोज इज़ अ नेम ऑफ अ थिंग एंड बास्केट इज़ ऑल्सो अ नेम ऑफ अ थिंग. सो मैंगोज एंड बास्केट बोथ आर द नाउन इन द गिवन सेंटेंस. नाउ मूविंग फर्दर टू अवर नेक्स्ट सेंटेंस विच इज़ children are playing in the park. So children, name of a person, and यहाँ पे हमें एक place का name भी given है. children कहाँ पे खेल रहे हैं? पार्क में खेल रहे हैं. So park is the name of a place, right? So name of a place is also a noun. Now moving further to our next sentence is this is a hospital. So hospital is what? Hospital is the name of a place. So this is how you can identify a noun. I hope you understood this topic. So now you all have to do the exercise given in your English grammar book.
So I will explain you that what you have to do in this exercise. So your first exercise is underline the nouns in these sentences and write them in the space given. See, आपको ये जो space given है उसमें आपको nouns को लिखना है. पहले सेंटेंस में अंडरलाइन करना है, नाउन को आइडेंटिफाई करना है, देन गिवन स्पेस में आपको उनको लिखना है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज आई प्रेफर कॉफ़ी और कॉफ़ी टू टी. सो कॉफ़ी और टी इज़ व्हाट? इट्स अ नेम ऑफ अ थिंग, सो इट्स अ नाउन. सो इनको अंडरलाइन किया एंड गिवन स्पेस में हमने नोट डाउन कर दिया. ऐसे ही आपको रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेज में नाउन को आइडेंटिफाई करना है. Now exercise 2 is look at these pictures. You will find a lion, cow, a horse and a camel. They are all animals. There is an owl in the picture too. It's not an animal, it's a bird. It is stranger in the group of animals. See, हमें group of animals given है एंड इन ग्रुप ऑफ एनिमल्स में हमें एक बर्ड गिवन है. सो बर्ड क्या हो गया? बर्ड एक स्ट्रेंजर हो गया इन ग्रुप ऑफ एनिमल्स में. सो ऐसे ही इस एक्सरसाइज में व्हाट यू हैव टू डू, आपको ऐसे ही कुछ ग्रुप ऑफ नाउन गिवन है एंड उसमें से आपको स्ट्रेंजर फाइंड आउट करना है. जैसे ये सब एनिमल्स थे, इसमें एक बर्ड था. सो बर्ड्स इज़ अ स्ट्रेंजर, हमने बर्ड को अलग सर्कल कर दिया, राइट. ऐसे ही आपको कुछ ग्रुप्स गिवन हैं जिसमें आपको स्ट्रेंजर्स आइडेंटिफाई करने हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ग्रुप हमें गिवन है आउल, पैरेट, काउ, क्रो, स्पैरो. सो आउल, पैरेट, क्रो एंड स्पैरो, दीज ऑल आर व्हाट? दे ऑल आर बर्ड्स. एंड काउ क्या है? काउ एक एनिमल है. सो काउ इज़ अ स्ट्रेंजर, सो हमने काउ को सर्कल कर दिया. ऐसे ही आपको बाकी की एक्सरसाइज खुद से करनी है. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नाउन्स गिवन बिलो. सी, आपको ये नाउन्स गिवन है बॉक्स में एंड आपको सेंटेंस को रीड करना है एंड उसमें जो नाउन आना चाहिए वो आपको लिखना है. फॉर एग्जाम्पल स्वीपर स्वीप्स द फ्लोर. द स्वीपर स्वीप्स द फ्लोर. कौन स्वीप करता है फ्लोर को? स्वीपर. सो यहाँ पे मैंने करेक्ट नाउन फिल कर दिया है. लाइक द डैश कट्स हेयर. हु कट द हेयर? बार्बर. सो बार्बर यहाँ पे करेक्ट नाउन है जो यहाँ पे आना चाहिए इस प्लेस में. सो द बार्बर कट्स द हेयर. रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेज आप खुद से करेंगे. ओके. एक्सरसाइज 4 इज अंडरलाइन द नाउन्स इन द स्टोरी. सी, आपको एक स्टोरी गिवन है एंड इसमें व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अंडरलाइन द नाउन्स. यू ऑल नो व्हाट नाउन इज. सो आपको इस स्टोरी में नाउन को आइडेंटिफाई करना है और उसको अंडरलाइन करना है. सो दिस इज ऑल you have to do in these exercises. I hope you understood this topic. So this is all about today. Thank you and take care.